During the preparation, I think you should stick more towards practicing MCQs and giving live tests. That is really very crucial, and you just have to revise everything you have studied. You have to be punctual, you have to dress up professionally, you have to talk professionally, all the communication skills with all the patients. So Bharti has really helped me a lot in all these aspects. I think discipline is the distance towards the success. Sumit sir from the OMR department, he used to take up mocks during our third year. तो उससे हमें ये पता चलता है कि हम कहाँ पे एक्चुअली स्टैंड करते हैं अपनी प्रिपरेशन में, हमारे कॉन्सेप्ट्स में. जय हिंद. तो आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट जुड़े हैं जिन्होंने अपनी डेडिकेशन, हार्ड वर्क और सेल्फ बिलीफ के साथ नीट जैसे टफेस्ट एग्ज़ाम को क्रैक किया है. ना ही सिर्फ उन्होंने नीट MDS एग्ज़ाम को क्रैक किया है, पर अपने लिए एक आउटस्टैंडिंग रैंक सिक्योर करी है. वी वेलकम यू डॉक्टर विशेष मंगल सर. थैंक यू सो मच हिमाद्री. काइंडली प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ सर. So Himadri, I got in NEET MDS 2025, I got the All India rank 48. In INI-CT May 2025, I got All India rank 23. I got UP State rank 4. आउटस्टैंडिंग सर. Thank you so much. तो सर कैसी फीलिंग है अभी, इस वक्त क्या फील कर रहे हैं आप? I am just so overwhelmed, and I am feeling very blessed right now that I got this opportunity and that I got this rank. I think my parents are super happy. My faculty, all the faculty members of Subharti, I think are really happy for me. क्या रिएक्शन था आपका सबसे पहले जब आपने अपनी रैंक देखी, अपने रिजल्ट आपने सबसे पहले देखा? So I couldn't believe it actually. मैंने कम से कम नहीं तो 10 बारी बाद दोबारा जाके देखा, उसे टैली करा. So the thing was, on the day of the result, my mom was not at home. I was all alone. My father was at his clinic, and my friend just called me up and told me that the result is out. So मैंने जैसे ही उसे खोला, मतलब मेरी तो हिम्मत ही नहीं हुई. I just called up my mom. I sent her my admit card and उनको मैंने बोला कि आप प्लीज़ रिज़ल्ट चेक करके बताओ, मेरे से नहीं होगा. So शी इज़ नॉट सो टेक savvy, ऑलराइट. सो उनको भी समझ नहीं आ रहा था कि इज़ इट एक्चुअली द राइट रैंक. उन्होंने चेक करके मुझे बोला यू गॉट द 48 रैंक एंड ऑल दैट, एंड आई जस्ट कुडंट बिलीव इट. आई टोल्ड माई मॉम कि प्लीज़ रीचेक इट अगेन. आई कैन नॉट बिलीव इट बिकॉज it's like you tend to make many silly mistakes during the exam, and you always have this slight kind of a self doubt while attempting it. तो तुमको नहीं पता यार, it is very unpredictable, ठीक है. बट एक बिलीफ था कि आई हैव गिवन माई 100%, एंड आई थिंक उसका ही बस एक रिज़ल्ट है. और बस हाँ, फिर जैसे ही मॉम ने मेरे को बताया, आई कॉल्ड अप माई फ्रेंड्स एंड आई गेव देम माई रैंक, एंड आई टोल्ड देम टू चेक माई रिज़ल्ट अगेन. आई गेव देम माई रोल नंबर and they checked it again and again and I still couldn't believe it. Then my father came home. He came home early that day, and he hugged me like very tightly, and I think it might be for the first time that happened, and we both were just crying. My mom was crying. प्राउड मोमेंट. So it was a very proud moment. तो सर आपने अपनी अंडर ग्रेजुएशन सुभारती डेंटल कॉलेज से करी है. हाँ जी. तो लाइफ एट सुभारती आपके लिए कैसी थी? लाइफ एट सुभारती, अगर आप मेरे से पूछेंगे कि डिस्क्राइब इट इन वन वर्ड, आई वुड से डिसिप्लिन. क्योंकि जितना डिसिप्लिन मैंने इस कॉलेज में इनकलकेट किया है, आई थिंक आई एम फ्रॉम एन एयरफोर्स स्कूल, वहाँ भी इतना नहीं था. तो लाइक फॉर एग्जांपल डिसिप्लिन इन द सेंस कि यू हैव टू बी पंक्चुअल, यू हैव टू ड्रेस अप प्रोफेशनली, यू हैव टू टॉक प्रोफेशनली, एंड like all the communication skills with all the patients. Like Subharti has really helped me a lot in all these aspects. I think discipline is the distance towards the success. I think सुभारती का एक ये मोटो रहा है. Correct. डेडिकेशन. तो सर यहाँ प्रोफेशनल और क्लिनिकल स्किल्स जो बच्चा थर्ड ईयर से फोर्थ ईयर और इंटर्नशिप में सीखता है, क्या प्रोफेशनल और क्लिनिकल स्किल्स ने आपकी मदद करी एग्ज़ाम, नीट एग्ज़ाम में? Definitely. So the thing is, when you start practicing on patients, and as we all know that we have a good amount of patients coming in Subharti, and जो भी जितना भी exposure मिलता है during all these years,
that is actually really helpful because you tend to apply all that knowledge during your preparation because you are actually solving clinical questions there, correct? So आपको पता होना चाहिए कि कैसे करना है, क्या करा था, क्या हुआ था, like you just tend to apply all that knowledge when you sit there for 3 hours. सर एकेडमिकली और अगर आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट वाइज देखा जाए तो क्या आपको लगता है कि सुभारती ने एक बेस फाउंडेशन आपके लिए सर्व किया है? डेफिनेटली करा है क्योंकि एज आई सेड कि वही डिसिप्लिन, वही टू ड्रेस अप नाइसली, टू टॉक नाइसली, टू रिस्पेक्ट योर सीनियर्स, टू रिस्पेक्ट योर फैकल्टी मेम्बर्स, ऑल दैट हैज़ एक्चुअली रियली हेल्प्ड मी क्योंकि बिकॉज ऐसा होता है कि ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन यू हैव टू शो अप, ठीक है, यू हैव टू बी परसिस्टेंट. सो इवन ऑन द worst days you have to just sit there, come back, sit on your chair and start studying again and again क्योंकि बिना हार्ड वर्क के कुछ मिलता नहीं है एंड लक ऑल्सो फेवर्स दोज दैट डू द हार्ड वर्क. आई थिंक एक स्टूडेंट के लिए एक राइट अंडर ग्रेजुएट कॉलेज चूज़ करना एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात हो जाती है क्योंकि ये एक बेस फाउंडेशन देता है एक स्टूडेंट के माइंडसेट को डेवलप करने के लिए राइट डायरेक्शन में. आगे बढ़ते हैं आपके सुभारती से रिलेटेड फन मोमेंट्स के बारे में. कोई ऐसी मेमोरीज मोमेंट्स जो आप याद करते हो? Oh, there are so many moments. My best moments came during my internship because we had a group of like 7 friends and we are really very close till now. So we had a lot of fun. किसी के पास ऐसे कार होती थी and we used to go during the lunch time. We used to gather all together क्योंकि even though we were posted in different departments, हम सब अपना टाइम निकालते थे. इवन अगर वो हाफ एन आवर भी होता था तब भी हम सब टाइम निकाल के जाते थे, कार से जाते थे, थोड़ा मेरठ एक्सप्लोर करते थे ड्यूरिंग द लंच आवर्स. एंड फिर कभी कभी जैसे लेट हो जाते थे कि अटेंडेंस कट हो जाएगी तो बिल्कुल ही ऐसे स्पीड में आते थे कि बस अटेंडेंस मिस ना हो. तो दैट वाज अ रियली फन टाइम. आपका कोई फेवरेट स्पोर्ट रहा हो यहाँ पे? फेवरेट स्पोर्ट बेसिकली द थिंग वाज स्पोर्ट यहाँ पे ड्यूरिंग फेस्ट जो होते थे आई यूज़ टू पार्टिसिपेट इन मोस्ट ऑफ देम. इसके अलावा आई यूज़ टू लाइक बैडमिंटन लॉट. डेंटल कॉलेज के बीच में जो कोर्ट है वी यूज़ टू प्ले अ लॉट ऑफ बैडमिंटन देयर. सो आपकी हैंग आउट प्लेसेस क्या रहती थी? हैंग आउट प्लेसेस, ओके, सो ड्यूरिंग माई इंटर्नशिप मार्स खुल गया था तो मार्स में हम जाते थे. इससे पहले जो मार्स अंदर जो एक कैफ़े है कैंपस में, दैट वाज आवर फेवरेट स्पॉट टू हैंग आउट. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज़ ऑल्सो जैन शिकंजी नियर बाय. हम वहाँ पे तो मतलब ऐसे कि ब्रेकफास्ट ही वहीं पे कर रहे हैं, कभी कभी ऐसे हो जाता था. तो आपने अपना क्लिनिकल और एडवेंचरस हाँ मोमेंट एग्जैक्टली करा. अच्छे से बैलेंस 100%. तो डॉक्टर विशेष आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में. तो क्या स्ट्रेटेजी थी आपकी? ओके, मैंने एक ड्रॉप ईयर लिया है. ड्यूरिंग माई इंटर्नशिप आई जॉइंड अ कोचिंग इंस्टीट्यूट. वहाँ पे मैंने उनके सारे लेक्चर्स एक बारी गो थ्रू कर लिए थे ड्यूरिंग माई इंटर्नशिप क्योंकि थोड़ा सा टाइम कम था. आई एम नॉट सेइंग कि अगर आप इंटर्नशिप से स्टार्ट करते हो तो आपका नहीं हो सकता. देर आर मैनी पीपल इन द टॉप 10 दैट आई नो हु हैव डन इट ड्यूरिंग देयर इंटर्नशिप. सो मेरे से नहीं होता था थोड़ा सा, तो इसीलिए मैंने सिर्फ आई जस्ट मेड श्योर दैट आई कंप्लीट ऑल द लेक्चर्स सो दैट आई गेट अ हेड स्टार्ट when I drop. Okay, so during my drop year I watched all those lectures again, and then I used to just follow what the institute told me to, and I just showed up every day. That is, I think, the most important thing one should follow. आपने अपनी प्रिपरेशन इंटर्नशिप से ही शुरू कर दी थी? हाँ जी, इंटर्नशिप से ही कर दी थी, बट इतनी ज़्यादा बिल्कुल फोकस्ड नहीं थी इंटर्नशिप में. ड्रॉप ईयर में काफ़ी ज़्यादा थी बिकॉज मेरे पास और कुछ करने के लिए था नहीं. सो आई जस्ट डेडिकेटेड ऑल माई टाइम टू इट. क्या टाइम स्केड्यूल रहता था आपका ड्यूरिंग माई ड्रॉप ईयर? ओके, सो आई यूज़ टू वेक अप अराउंड 9 or 10 o'clock, and then I used to sit down at 12 o'clock.
Then there was nothing as such a there was nothing a schedule kind of a thing. I just used to sit down and just start studying. जब तक हो रहा है तब तक करते थे. And बस ये था कि I just have to sit for at least 12 hours. ठीक है, उसमें से जितना effective study time है that was a different thing. But you have to sit down for at least 12 hours to study effectively for 8 hours, you know. So इसीलिए I just made sure that I study at least 8 hours every day. कभी कभी नहीं हो पाता था, but that is fine, it gets covered up. तो ऐसे ही था. I used to sleep like at 2 at night, and फिर मैं उठता था आराम से. So I was a kind of a night person as well as a morning person both. सब कुछ फिक्स्ड रूटीन था आपका या फिर कुछ ऑफ रूटीन भी जाते थे आप? 100% ऑफ रूटीन जाता था, बिकॉज बहुत प्रिपरेशन एक ऐसा फेज़ है जिस इट्स लाइक अ रोलर कोस्टर राइड. देयर विल बी हाइज, देयर विल बी लोज. सो आपको कोई दिन होते हैं जिसमें आप आराम से 12-12 घंटे भी पढ़ लेते हो. कोई ऐसे होते हैं कि आप बिल्कुल लाइक मेयर 4 hours भी नहीं कर पा रहे. सो ऐसे कोई फिक्स नहीं था जिस दिन पे जो भी, अगर मतलब जैसे अगर मेरी एक डेडलाइन है कि आई हैव टू फिनिश दिस सब्जेक्ट इन लाइक 3 days, तो फिर अगर मैंने 3rd डे तक कुछ नहीं करा है तो ऑब्वियसली आई हैव टू इंक्रीज माई स्टडी टाइम ऑन द 3rd डे, राइट. सो बस ऐसे ही स्केड्यूल थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता था डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ वर्कलोड आई हैव बिफोर द डेडलाइन. पूरी प्रिपरेशन के दौरान डॉक्टर विशेष आपका क्या माइंडसेट रहा जिसने आपको मोटिवेटेड रखा प्रिपरेशन करने के लिए? Okay, one thing I used to do was I used to write down my goal on my calendar, which was just right in front of me. I used to write aims on the calendar. I still have that. So that kind of motivated me to just show up every day and keep on doing what I am doing. Yeah, so it's like one suggestion is that you can write down your goal in front of you and just become like a horse with eye blinders. Just look in one direction and just go with it. You might not get what you wish for, but you'll definitely get something really good. So I aimed for aims. Although I just nearly got aims. I got into aims Rajkot Endo, but then I have to leave it because the infrastructure is not so good. So but from there I got King George's Medical University, Lucknow, Prosto. That is both my dream branch as well as my dream college. एक क्वेश्चन रहता है सर, क्या ज़रूरी है कि फर्स्ट ईयर से ही स्टूडेंट नीट एमडीएस की प्रिपरेशन करना शुरू कर दें? नहीं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है. मोस्ट ऑफ द पीपल स्टार्ट इन देयर इंटर्नशिप. मैक्सिमम आपको करना है तो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द फाइनल ईयर. जस्ट मेक श्योर कि आप पूरे 4 years अपने जो भी हैं BDS के, जस्ट मेक श्योर दैट यू स्टिक टू योर स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स. आप कोई भी ऑल्टरनेट सोर्सेज से पढ़ाई ना करें. बहुत बच्चे होते हैं मास्टरिंग से पढ़ते हैं. जस्ट डोंट डू दैट. रिलाई ऑन योर स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स. कीप योर कॉन्सेप्ट्स क्लियर. आस्क योर फैकल्टीज. द फैकल्टीज एट सुभारती आर वेरी वेरी सपोर्टिव. If you ask them anything, they'll 100% tell you, give you a solution as soon as possible. So I think you can start maximum by internship, minimum by 4th year. तो डॉक्टर विशेष एक ऐसी टिप जो आप अपने जूनियर्स को और जो स्टूडेंट्स हैं जो नीट एमडीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको देना चाहेंगे? You should keep on doing hard work. बिना मेहनत करे कुछ नहीं मिलेगा. वही सेम थिंग, luck favors those who do that hard work, correct? And you have to persist. Just write down persist in front of you and just keep on persisting. That is one word that kept me going on. It will not be easy, but it will all be worth it. Trust me, it will all be worth it. So I think that was my mantra, and that will remain my mantra for the rest of my life. Just a personal question, Dr. Vishesh. If you have to go all back again, Yeah. what is that one thing you would like to change, if Okay. you want to? During my preparation, I would say that I really want to
change the way I handled things, I handled time, because I was not the best at time management, and I used to make all those schedules, but I never really stuck to them. So that is one thing I would change. Another thing, एंड तक आते आते you have to um, reduce the amount of data that you have. ठीक है, आपको जो याद नहीं रहता, you have to highlight that, you have to make a separate thing for that. Do anything, just उसको आपको कम करना है. There is a very vast syllabus, आपको उस सब को कट शॉर्ट करना है. ठीक है, so I could not do that. I was bad at it. इसीलिए in the last 1 week of before NEET, I was really anxious because I had so many subjects left. I had so much of data to study, and I was literally studying till the last minute before going inside the examination hall. So अगर मैंने वो करा होता कट शॉट तो शायद मैं थोड़ा सा और रिलैक्स जाता. But all is well that ends well, I think. Revision is the key. Revision is actually the key. Same thing as persist. You have to revise and revise and revise as many times as possible. During the preparation, I think you should stick more towards practicing MCQs and giving live tests, like the mock tests. That is really very crucial, and you just have to revise everything you have studied. Do it at least 3 times, क्योंकि पहली बार करोगे नहीं याद होगा, दूसरी बार करोगे तो ऐसा लगेगा पहला वाला याद क्यों नहीं है, फिर सेल्फ डाउट आएगा, लेकिन वो सब ठीक है. फिर जब आप थर्ड टाइम करोगे तब आपको याद आने लगेंगे कि अच्छा ये तो शायद डेंटल पल्स के यहाँ पे इस पेज पे था, ये मैंने यहाँ पढ़ा है, ये मेरे नोट्स में है. तो इवेंचुअली आफ्टर द थर्ड रीडिंग आपको सब कुछ याद आने लग जाएगा, आपको सब कुछ याद रहने लग जाएगा. सो यू हैव टू डू एटलीस्ट 3 टाइम्स एवरीथिंग. तो डॉक्टर विशेष, why did you choose BDS as a career, as a profession? Okay, during my 12th exams, like after my result came out, I was looking for a career path. So I came across dentistry through my father's friend. Like I always used to visit him during my um, regular dental checkups. So I had that as an alternate option. Like amongst all the other options, I had this one as well. So I researched about it. I looked for people online. I talked to some of them, and it really intrigued me. It was like a path less chosen where I can shine more brightly. And then after that, when I joined Subharti, I was मुझे बहुत अच्छा लगा. I really like the field, and I wanted to continue in it. That is why I'm like pursuing MDS also now. Did you like the environment of Subharti? Definitely, environment of Subharti is really nice because the crowd is very nice. Apart from that, the faculty, the infrastructure as a whole, all the updated dental chairs, updated labs. Now we have the updated phantom heads as well. There is CAD CAM, there is CBCT, OPG, which in some colleges still lacking. So as a whole package, I think Subharti is a very good option for all the undergraduates, as well as postgraduates. I wouldn't say. Apart from that, I think all the labs and the clinics are also very updated. The patient flow is really good. The faculty is very supportive, and the hostel facilities are very good. And you also have a library here. You can stay there till 11 o'clock and study. So it gives a very good environment to study. क्योंकि आसपास के सारे बच्चे पढ़ रहे होते हैं, एंड बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस नहीं होती है, तो बहुत अच्छे से वहाँ पे एक पढ़ाई का एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट होता है, एंड यू कैन स्टडी for long hours there. And everything now is air conditioned also, so you have this beautiful Mass Resort as well. So I think it's a whole package. Where you used to study most? At hostel or at library? I used to do both. During my internship, I preferred library.
because some of my friends also joined me there. Because in the hostel, all my friends couldn't come, right? They were not allowed. So in the library we used to study together. It was like a group study kind of a thing. So we used to keep motivating each other, and yeah, that is how we did it. Dr. Vishesh, if others are choosing a college, what advice would you like to give? I think all the undergraduates, they should choose their college very wisely. A college where the outpatient is very good. So I think Subharti is a very good option. यहाँ पे faculty is very supportive and they'll guide you at all times. कहीं भी आप फंस जाओ, कुछ भी हो जाए, they'll be there for you. ठीक है, आपको समझाने के लिए, आपकी थ्योरी स्ट्रॉन्ग करने के लिए दे विल ऑलवेज बी देयर. ठीक है, आपकी लैब वर्क अच्छा हो, दे जस्ट मेक श्योर दैट यू लर्न somehow. You learn here. I think that is the most distinguishing factor. इसके अलावा इनका, आपको स्लोगन तो पता ही है, शिक्षा सेवा संस्कार एवं राष्ट्रीयता. तो आपको एक राष्ट्रीयता का भी एक एस्पेक्ट पता चलेगा और ज़्यादा इंकलकेट हो जाएगा. सो यू जस्ट प्राउड टू बी एन इंडियन. यहाँ पे गुड मॉर्निंग की जगह जय हिंद बोलते हैं, तो दैट इज़ लाइक अ वेरी गुड थिंग. एक पेट्रियाटिज़म की फील आती है, तो आई थिंक दैट इज़ वेरी यूनिक. Why it is important to choose to do MDS after BDS? What's your opinion? Is it necessary, or what's your opinion, sir? Himadri, I think MDS is really important because during these times the world is moving towards super speciality. So one has to make sure that they complete their studies as a whole. उनको BDS के बाद they should make sure that they do MDS in a particular branch of their choice. क्योंकि आगे जाके the awareness will be so much that if you are just a plain BDS, you'll just lag behind. ठीक है, वो एक टाइम था जब BDS was given a lot of importance, but the time is changing and I think we should also change with time. Do you miss your days at Subharti? Oh, definitely. Days at Subharti were really good. मतलब ऐसे भी दिन होते थे कि we used to get scolded by our teachers, but अब जाके वो सब memories बन गई हैं. तो हम जब भी साथ में बैठते हैं, we keep pulling each other's leg कि तेरे साथ तो ऐसे हुआ था, तेरे साथ वैसे हुआ था, वो याद है टाइम जब सर ने ऐसे बोला था, मैम ने ऐसे बोला था. तो वो टाइम शायद ही कभी वापस आएगा. इवन ड्यूरिंग माई MDS आई डोंट थिंक आई विल गेट दैट टाइम बैक, एंड आई रियली विश एंड आई होप दैट टाइम ऐसा वापस आए, बिकॉज द फ्रेंड्स दैट यू मेक ड्यूरिंग योर कॉलेज टाइम वो शायद ही कभी बनेंगे. फ्रेंड्स की क्या इम्पोर्टेंस रहती है? फ्रेंड्स की ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन आई वुड से कि इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी कि जब भी मैं लो फील करता था, जब भी मेरे को सेल्फ डाउट होता था, आई यूज टू जस्ट कॉल देम अप एंड टॉक टू देम फॉर लाइक 15 minutes, half an hour, 1 hour. I used to rant about all the frustration that was building up inside me. And वो सुनते थे बस, और बस मेरे को बोलते थे कि you just keep on doing whatever you are and just persist and just keep on doing. We are there for you. घर से दूर रहते हैं और फ्रेंड्स और फैकल्टीज़ होती हैं, वही आपको. हाँ, मतलब अगर ड्यूरिंग माई इंटर्नशिप एज वेल फ्रेंड्स और फैकल्टीज़ ने इक्वली हेल्प करी. कहीं भी आपको डाउट होता है, कहीं भी आप कहीं फंस जाते हो, आपको समझ नहीं आता कि आगे क्या करना है, तो फैकल्टी ही होती है जिनके पीछे आप जाते हो, उनसे पूछते हो कि आपको क्या करना चाहिए, बिकॉज ऑफ कोर्स दे हैव दैट एक्सपीरियंस, दे हैव बीन थ्रू इट. तो उनको पता है कि हाउ टू टैकल ऑल दीज थिंग्स. एक और चीज़, एक kind of a positive stress during your college time is very important, and I think Subharti provides that, जिससे you just आपको मतलब एक प्रेशर वो करने की बिल्डअप रहता है. हाँ, प्रेशर बिल्डअप तो रहता है,
बट उसको फेस करने की जो एक पावर एबिलिटी होती है तो वो आपके अंदर आ जाती है। तो आप जब ऐसे सिचुएशंस में फंस जाते हो, जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है किसी चीज़ का, तो आपको वो टैकल करना आ जाता है, ठीक है। दैट इज़ अ बेस दैट सुभारती बिल्ड्स अप। इसके अलावा देर आर आई रिमेंबर दैट सुमित सर फ्रॉम द OMR डिपार्टमेंट, ही यूज़ टू टेक अप मॉक्स ड्यूरिंग अ थर्ड ईयर। तो उससे हमें ये पता चलता है कि हम कहाँ पे एक्चुअली स्टैंड करते हैं अपनी प्रिपरेशन में, हमारे कॉन्सेप्ट्स में। तो वो मतलब उन्होंने ही, मैं कहूँगा कि मेरे अंदर तो एक वो सीड ऐसे सो करा है कि नहीं, यू हैव टू डू इट एंड यू जस्ट हैव टू स्टडी फॉर इट एंड गेट अ गुड रैंक। तो ऐसे जब मॉक्स होते हैं आपको पता चलता है कि आपके आसपास वाले लोग, आपका कंपटीशन जो है, वेयर डू दे स्टैंड एंड वेयर यू स्टैंड, ठीक है। आपको और कितनी मेहनत करनी है जिससे आप उनसे भी आगे निकल जाओ। कॉलेज इटसेल्फ ही MDS की प्रिपरेशन आपको स्टार्ट करवा रहा है। एग्जैक्टली, आपके अंदर वो एक सीड जो सो करना होता है कि आप शुरू करो, आपको पुश करने वाली चीज़। तो आई थिंक सुभारती गिव्स यू दैट अपॉर्चुनिटी एज वेल। इज इट इम्पॉर्टेंट टू चूज कोचिंग्स? कोचिंग्स यू कैन, ऐसा लेकिन कोई कंपलसरी नहीं है। आई हैव सीन पीपल हु हैव डन इट विदाउट एनी कोचिंग। You just have to make sure that your concepts are clear. You have studied from standard textbooks. You have done ample number of revisions before going for the exam. I think that is all you need, and I think Subharti can give you all of that. So, Dr. विशेष, आपको क्या लगता है कि आफ्टर पासिंग आउट फ्रॉम सुभारती एक स्टूडेंट का क्या कॉन्फिडेंस रहता है? क्या स्टूडेंट इतना कॉन्फिडेंट होता है कि जस्ट आफ्टर पासिंग आउट सिर्फ BDS करी है वो अपना क्लिनिक ओपन कर सकता है या कहीं क्लिनिक में काम कर सकता है? डेफिनेटली हिमाद्री, आई थिंक सुभारती से जस्ट आफ्टर पासिंग आउट फ्रॉम सुभारती एक ऐसा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप हो जाता है, क्योंकि आप इतने पेशेंट्स ट्रीट कर चुके होते हो इन ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ डेंटिस्ट्री। तो आपको एक ऐसा कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ आप कर लोगे, ठीक है। आप कहीं जाते भी हो फॉर लाइक एन इंटरव्यू और फॉर जस्ट लाइक शैडोइंग समवन क्लिनिक पे, तो उन सबको पता होता है व्हेन यू टेल देम दैट यू आर फ्रॉम सुभारती, उनको पता होता है कि अच्छा सुभारती इज़ रियली अ गुड कॉलेज, एंड उनको पता होता है कि इस बच्चे को कुछ आता होगा, सुभारती में उनको सिखा दिया होगा, और उनके ऊपर उनको भी एक ऐसा कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ ये बच्चा तो कर ही लेगा। तो वो एक बहुत एक बड़ा फैक्टर है कि यहाँ से निकलने के बाद। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने अपना क्लिनिक भी खोला है, तो उनको ऑलरेडी वो कॉन्फिडेंस था और इसीलिए उन्होंने ऐसा करा है। तो आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड थिंग। डॉक्टर विशेष, बहुत से बच्चे होते हैं जो जस्ट आफ्टर BDS ड्रॉप ईयर लेते हैं अपनी MDS की प्रिपरेशन के लिए, तो क्या आपने भी ड्रॉप ईयर लिया था? हाँ जी हिमाद्री, मेरे को ड्रॉप ईयर लेना पड़ा, बट मैं ये नहीं सजेस्ट करूँगा कि सबको ड्रॉप ईयर लेना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली आपके जितने भी कलीग्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, वो सब आपसे आगे बढ़ जाते हैं, आप एक साल पीछे हो जाते हो, ठीक है। आप अपने जूनियर्स के लेवल पे आ जाते हो। तो उस वे में मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। आप अपनी इंटर्नशिप से स्टार्ट करिए, यू जस्ट गिव योर बेस्ट एफर्ट। मेरे हिसाब से कि आपको इस पूरी जर्नी में अपना 100% देना चाहिए। यू शुड स्टॉप व्हेन यू हैव गिवन योर 100%। उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है नहीं होता है, दैट इज़ ऑल अप टू योर डेस्टिनी। मैंने अपनी इंटर्नशिप के बाद मैंने तब भी नहीं दिया था, मेरी रैंक कुछ 3200 थी, बट मुझे पता था कि मैंने अपना 100% एफर्ट अभी नहीं दिया है। तो आई जस्ट वॉन्टेड टू गिव माई सेल्फ अनदर चांस, जिससे कि मैं अपना 100% दूँ और उसके बाद ही डिसाइड करूँ कि मेरी वेयर माई डेस्टिनी टेक्स मी। तो वो दिन है और आज का दिन है। आई जस्ट केप्ट ऑन गोइंग। बहुत ऐसे दिन आए जब मेरे को लगा कि शायद मेरे से नहीं होगा, मैं क्या कर रहा हूँ। मेरे फ्रेंड्स आगे बढ़ गए हैं, उन्होंने और कॉलेजेस में एडमिशन ले लिया है, वो ऑलरेडी कर रहे हैं, काफ़ी कुछ अच्छी चीज़ें कर रहे हैं, और बहुत केसेस देखता था उनके मैं। तो थोड़ा सा लगता था कि यार दे हैव स्टार्टेड अर्निंग और मैं अभी भी पढ़ ही रहा हूँ। ये भी नहीं, दूसरे कोर्सेज़ के भी जो फ्रेंड्स होते हैं, स्कूल के फ्रेंड्स होते हैं आपके, वो भी एक
अच्छा अमाउंट अर्न करना शुरू कर देते हैं बाय दिस एज, तो आपको हमेशा लगता है कि यार इज़ इट रियली वर्थ इट, बट ट्रस्ट मी, इट इज़ वर्थ every second of your time. You just have to give your 100% and just trust the process, trust yourself. बहुत ऐसे दिन आते हैं कि आप बहुत सेल्फ डाउट करते हो, you just have to stop right there. ठीक है, टेक अ ब्रेक, टॉक टू योर फ्रेंड्स, टॉक टू योर फैमिली, गो फॉर अ जॉग, लिसन टू म्यूज़िक. मैं तो कभी कभी ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता था, आई यूज टू जस्ट गेट इन टू माई कार एंड क्रैंक अप द वॉल्यूम अप टू द हाइएस्ट सेटिंग, एंड आई जस्ट यूज टू लिसन टू म्यूज़िक फॉर लाइक what 10 kind to of 15. music? एनीथिंग उस टाइम पे सब कुछ अच्छा लग रहा होता है, तो मैं बस सुन के आराम से बस करता था, रैंट करता था, फुल वॉल्यूम में गाना गाता था, किसी को सुनाई नहीं देता था क्योंकि कार में, तो बस मैं चले जाता था. तो ऐसे दिन आते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि इट विल बी अ केक वॉक. यू हैव टू वर्क रियली रियली हार्ड, बट इट इज़ ऑल वर्थ इट एट द एंड. जब मैंने प्रिपेयर करना स्टार्ट करा इन नवंबर, देयर इज़ अनदर INICET एग्ज़ाम, सो इन November 24 I really worked very hard for that exam, but when the result came I got 751, so my rank was 751 at that time. मुझे उस टाइम मतलब मैं ऐसे हो गया था कि यार मैंने इतनी पढ़ाई करी है, इतनी मेहनत करी, पूरे पूरे दिन बैठा, एंड उसके बाद भी मैं 751 पे हूँ. मतलब मैं इतनी पीछे हूँ, मैं कैसे ही करूँगा, मतलब मैं उसको कैसे ट्रांसफॉर्म करके अंडर 10 या अंडर 20 या अंडर 50 लेकर आऊँ, क्योंकि दैट इज़ द हार्श रियलिटी. आपको मेहनत करनी पड़ेगी, एक अच्छी रैंक लानी पड़ेगी, तभी आप अपनी पसंद का कॉलेज और ब्रांच ले पाएंगे, है ना. तो फिर भी आई जस्ट केप्ट ऑन गोइंग. सब भुला दिया मैंने. एक हफ्ता का ब्रेक लिया आफ्टर माई एम्स एग्ज़ाम. उसके बाद वापस बैठ गए दोबारा करने के लिए, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं होता. एंड यू जस्ट हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ एंड ट्रस्ट द प्रोसेस एंड जस्ट परसिस्ट एवरी डे, कम बैक, सिट डाउन एंड स्टडी. ठीक है, ऐसे करते हुए, एंड एक वो दिन था व्हेन आई गॉट द 751th रैंक, और आज का दिन है कि मैं उसी एग्ज़ाम में 23 लेकर आया हूँ. तो सिमिलरली फॉर नीट, फ्रॉम 3200 आई गॉट 48. तो आई थिंक गिविंग योर 100% इज़ द की टू सक्सेस. डॉक्टर विशेष, व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट दिस कि नीट MDS सिर्फ एक टॉपर ही क्रैक कर सकता है या एक एवरेज स्टूडेंट भी क्रैक कर सकता है? हिमाद्री, मेरे हिसाब से कोई भी क्रैक कर सकता है. ठीक है, देयर इज़ अ सेइंग कि यू डोंट हैव टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टू स्टार्ट, यू डोंट हैव टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टू स्टार्ट, यू हैव टू स्टार्ट टू बिकम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. तो ये एक ऐसा कोट है जो शायद कोई सुन लेगा तो उसको लगेगा कि हाँ, आई शुड स्टार्ट. तो मेरे हिसाब से एवरेज हो, टॉपर हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. आप एक नेशनल लेवल एग्ज़ाम दे रहे हो, यू आर एट द सेम लेवल एज द रेस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया. तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप अपना 100% तो दो. आई वॉज नॉट गुड एट स्टडीज़ ऑल द 4 years ऑफ एट सुभारती, बट आई ट्राई टू गेट माई कॉन्सेप्ट्स क्लियर, एंड विच एक्चुअली रियली हेल्प मी टू क्रैक दिस एग्ज़ाम. अभी नेक्स्ट ईयर नीट में सिर्फ 7 से 8 महीने रह गए हैं. आपको लगता है अगर स्टूडेंट अभी से पढ़ाई करना शुरू करेगा तो वो क्रैक कर सकता है नीट MDS? डेफिनेटली. मतलब मैं इतने लोगों से बात कर चुका हूँ, इतने प्रीवियस ईयर टॉपर्स से बात कर चुका हूँ, मेरे को मतलब करंट ईयर टॉपर से भी मैं बात करता हूँ. तो मेजरली लोगों ने इंटर्नशिप से ही स्टार्ट करके, ड्यूरिंग देयर इंटर्नशिप दे यूज्ड टू स्टडी, दे यूज्ड टू लाइक वेक अप अराउंड 5 o'clock इन द मॉर्निंग, और इंटर्नशिप के टाइम से, जैसे किसी की इंटर्नशिप 9 o'clock स्टार्ट हो रही है, तो वो 5 o'clock से लेके 8 o'clock तक पढ़ते थे. देन दे यूज्ड टू गेट रेडी, हैव देयर ब्रेकफास्ट एंड एवरीथिंग, अटेंड द कॉलेज, एंड तो यहाँ पे उनके 3 घंटे हो गए, 5 to 8. एंड देन जब वो 4 o'clock या 5 o'clock वापस आते हैं, 1 घंटा सो के, एंड दे यूज्ड टू स्टडी टिल 12 o'clock. तो वो 5 hours एंड ये 3 hours, तो 8 hours हो गए. ठीक है, तो लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं कि आप इंटर्नशिप में भी वो 8 घंटे निकाल पा रहे हैं. ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको टाइम देना है, आपको अपना हार्डवर्क करना है,
आपको रिवीजन करना है मल्टीपल टाइम्स, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप एवरेज स्टूडेंट हैं, टॉपर हैं, क्योंकि अगर एक टॉपर रिवीजन नहीं करेगा इन सारे सब्जेक्ट्स का, देयर आर 19 सब्जेक्ट्स, अगर वो ढंग से रिवीजन नहीं करेगा तो वो उसी लेवल पे आ जाएगा इवेंचुअली, ठीक है। और एक एवरेज स्टूडेंट अगर वही चीज़ फॉलो कर लेगा तो वो टॉपर से भी आगे निकल जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक एवरेज स्टूडेंट नहीं कर सकता। आई वॉज ऑल्सो एन एवरेज स्टूडेंट, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इफ़ आई कैन डू इट, anyone can do it. Dr. Vishesh, thank you so much for joining us. It was such a great session. It was super motivating, inspiring, and I think आपके wordings, आपके thoughts बहुत सारे नीट एस्पिरेंट्स और आपके जूनियर्स को इंस्पायर करेंगे। कुछ टिप लास्ट में जो आप अपने जूनियर्स को देना चाहते हैं, प्लीज़। Just keep working hard. Keep this word persist in your mind. Write down your goal and put it in front of you. Become like a horse with eye blinders. Just look in one direction and just go on. Thank you, Dr. Vishesh. We wish you lots of luck for your future, and we really hope you achieve good paths and you lead a very successful journey ahead. Thank you so much. Thank you so much, Himadri.